Hello, everyone. My name is Pankaj Godwani, and I welcome you all to yet another session on 50 Aeon Passages. देखते ही देखते हम लोग एपिसोड 8 पे पहुंच चुके हैं and the themes for episode 8 are psychology and environmental science. So again, यहाँ पर काफी दिनों बाद पहली बार तो आप लोगों से मुलाकात हो रही है बिकॉज फर्स्ट टू सेशंस के बाद देयर वाज अ स्मॉल ब्रेक एंड उसके बाद एपिसोड नंबर 8 में मैं आपके साथ वापस आया. सो यहाँ पे uh, हम लोगों ने सेम चीज जो है फॉलो की है. सो वी टुक एन आर्टिकल फ्रॉम द एऑन एंड वी यू नो वी कट इट शॉर्ट टू 400 वर्ड्स सो दैट वो आर्टिकल जो है यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों के लिए फिट हो जाए एंड देन वी ड्राफ्टेड सम क्वेश्चंस ऑन those articles. ठीक है. So first article is on psychology. Uh, you can look out for this name, decolonizing psychology. So basically, it was a 4,000 word article, and उसको फिर cut short करके उसके ऊपर passages जो थे वो बनाए गए थे. तो I give you 2 minutes to read this passage, and उसके बाद फिर मैं आपके साथ passage भी discuss करूंगा along with questions. So here you go. All right. सो ये पैसेज जो है हो सकता है कुछ लोगों के लिए डिफिकल्ट रीड हो बट ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है यार. इट टॉक्स अबाउट ड्यूअल रोल ऑफ साइकोलॉजी. सो बेसिकली यू नो साइकोलॉजी को कैसे देखा जाता था इन colonial era. It was used as racist tool of Western thought. No one can deny it has been used to stigmatize, categorize, infantilize, manipulate, and transform our ways of seeing ourselves. ठीक है. Each other and even the very function of the civilization क्योंकि साइकोलॉजी को एज टूल यूज किया गया था. बट द स्टडी ऑफ द माइंड मतलब साइकोलॉजी की ही बात कर रहे हैं बट द स्टडी ऑफ द माइंड has simultaneously been a part of the story of anti-colonialism and liberation. ये जो साइकोलॉजी ये जो साइकोलॉजी है वो एंटी colonialism भी है and it's a means of liberation, a potent tool for overcoming delusion and confusion in the face of oppression. कि जब भी आपके ऊपर कुछ इम्पोज किया जा रहा हो तो साइकोलॉजी जो है इट एक्ट्स एज अ मींस ऑफ लिबरेशन. When Delphic oracle urged the supplicant to know thyself is knowing yourself. What exactly was to be gained by knowing? क्या मिलना था अपने आप को जान के? Presumably, he was to be liberated from the delusion through the capacity to clearly understand his own motives, fears, and aspirations. वो अपने आप को जानता. For Socrates, it was the method of dialogue that allowed one to know oneself, while the Epictetus and acknowledgement of the forces outside one's control was crucial to knowing. कि भाई ऐसी कौन सी forces हैं जो हमें control कर रही हैं. ठीक है. A decolonial psychology becomes possible. So basically, वो जो चीज हमें बांधे बैठी है हम उसी से ही फ्री होते हैं because it's means of liberation. So a decolonial psychology becomes possible with awareness that subjectivity is embedded in history and
hierarchy कि जो हिस्ट्री है उसमें सब्जेक्टिविटी एम्बेडेड है, राइट? What happens when the context one lives under is colonial oppression? उस कॉन्टेक्स्ट में उस कॉन्टेक्स्ट को क्या होता है, जो कॉन्टेक्स्ट कॉलोनियल ऑपरेशन वाला होता है? साइकोलॉजी हैज सर्व्ड एज सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस बाय अलाउइंग individuals to force their own identities within their lived context. So पहले it was imposed on you all. Now after your after you have studied yourself, आप अपनी खुद की आइडेंटिटी वहां पे लेके आते हो. In the middle of 20th century, psychoanalysis served as language for articulating the inner landscape. Right? अब अपना अंदर की बातें आप बता सकते हैं. After the Second World War, when colonial declensions of land and people bore the strange fruit of new nations, psychodynamic theory offered potential of analyzing personal and collective trauma through liberatory discourse. So basically, Second World War के बाद जब nations वापस आए, psychodynamic theory offered the potential of analyzing personal and collective trauma. क्यों? क्योंकि everyone knew themselves and हुआ ऐसा कि सब लोगों ने बैठ के बात की. एंड why was it possible? क्योंकि साइकोडायनेमिक थ्योरी ने उसको फैसिलिटेट किया, राइट? A report from Holmes Commission on Racial Equality in American Psychoanalysis indicates that social is deeply embedded in psych. हम सब की मेंटालिटी में सोसाइटी सोशल जो है वो डीपली एम्बेडेड होता है. एंड एन एसेंशियल फोकस ऑफ psychoanalytic thought. Psychology provides a format for self knowledge through which individuals can articulate their experiences and derive explanations for their sense of dislocation. So basically, it's because of psychology you are able to articulate your problems, right? The development of inner landscape through which an individual can know herself constitutes the liberatory potential of psychology. So, जब आप अपने अंदर के लैंडस्केप को articulate करते हो, जानते हो, that's when you become or you liberate yourself. To know oneself in the post-colonial moment is to convince the intersubjective space in which one can analyze the consequences of subjugation in behaviors and thought patterns and understand them in context of wider world. जब आप ये साइकोलॉजी को यूज करते हो, यू नो अबाउट योर इनर सेल्फ, तब जाके आप ऐसी चीजों को समझ पाते हो कि सब्जुकेशन का आपके बिहेवियर के ऊपर क्या इम्पैक्ट है. सो बेसिकली साइकोलॉजी इज सोर्स ऑफ लिबरेशन फ्रॉम ऑपरेशन. इस तरीके से आर्ग्यूमेंट को प्रेजेंट किया गया है. सो यहाँ पे मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है रखा हुआ है. आप इसको एक बार देखें एंड आंसर करें कि क्या होना चाहिए राइट आंसर. अब देखिए, यहां पे हम लोग वापस से उन्हीं ट्रैप्स को डिस्कस करने वाले हैं. नाउ दैट यू हैव अंडरस्टूड द पैसेज, व्हाट इज द प्राइमरी आर्ग्यूमेंट ऑफ द पैसेज? Psychology, though rooted in Western operation, has evolved into a discipline focused on individual well-being and diagnostic accuracy. काफी क्लोज लग रहा है ना, क्योंकि साइकोलॉजी को पॉजिटिवली यहाँ पे पोर्ट्रे किया गया है. अब यहाँ पे साइकोलॉजी दो रूटेड इन वेस्टर्न ऑपरेशन. देखो, साइकोलॉजी इज रूटेड इन वेस्टर्न ऑपरेशन ऐसा क्लियरली क्लेम नहीं किया हुआ. ये आर्ग्यूमेंट को बड़ा वेग बना रहा है. Has evolved into a discipline focused on individual well-being and diagnostic accuracy. Again, what is this term used for? या फिर rooted in Western oppression. So basically, psychology के दो purposes आपको बता रखे. एक purpose जो है वो it was a racist tool of Western thought, and basically second, it can transform ourselves, right? So यहाँ पे rooted in Western operation and diagnostic accuracy कि भाई साइकोलॉजी से आप अपने आप को करेक्टली डायग्नोसिस दे सकते हो. दिस इज इनकरेक्ट. काफी ज्यादा स्कोप के बाहर जा रहा है. डिस्पाइट इट्स कॉम्प्लिसिटी इन कॉलोनियल हायरार्कीज, साइकोलॉजी हैज सर्व्ड एज अ पावरफुल टूल फॉर पर्सनल एंड कलेक्टिव लिबरेशन. देखिए, डोमेस्टिक एक्यूरेसी को प्लीज डू नॉट कंफ्यूज डोमेस्टिक एक्यूरेसी विथ लिबरेशन, because both of I mean this phrase and collective liberation both are very different from each other, right? So do not confuse this for this. The correct answer for this one is boy.
Why not see the purpose of psychology has shifted from understanding the psyche to critiquing cultural narratives of race and identity. So, critiquing cultural narratives of race and identity. This is not given in the passage. Again, psychology's core methods, such as psychoanalysis, have become outdated. ये तो उसको नेगेटिवली प्रेजेंट कर रहा है, सो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता. आई होप इट्स अंडरस्टूड. सो हम लोग किस तरीके से ऑप्शंस को कंपेयर करें एंड राइट आंसर तक पहुंचे, यही मेरा ऑब्जेक्टिव है, यही मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं. सो बी इज योर आंसर. नेक्स्ट, question number two. According to author, which of the following can be achieved through the practice of decolonial psychology? Decolonial psychology यहां पे कहीं पे आपको दे रखा है, ठीक है. सो अगर आप decolonial psychology को प्रैक्टिस करोगे तो क्या अचीव कर सकते हो? लेट्स सी. सो यहां पे द करेक्ट आंसर, चलो एक एक करके हम लोग इवेल्युएट करते हैं. अ कंप्लीट रिजेक्शन ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजिकल थ्योरी इन फेवर ऑफ इंडिजिनस विजडम एंड ट्रेडिशन. सो बेसिकली मॉडर्न साइकोलॉजिकल थ्योरी को हम लोग कंप्लीटली रिजेक्ट कर बैठेंगे अगर डी कॉलोनियल साइकोलॉजी को प्रैक्टिस करते हैं तो. बट देन जो मॉडर्न साइकोलॉजिकल थ्योरी है, उसको हम लोग कंप्लीटली रिजेक्ट कर बैठेंगे इन फेवर ऑफ इंडिजिनस विजडम एंड ट्रेडिशंस. इंडिजिनस विजडम एंड ट्रेडिशंस की तो बात ही नहीं हुई है, ठीक है. दैट इज वाई विजडम एंड ट्रेडिशंस वो इसका पार्ट नहीं बनते. क्रिएशन ऑफ न्यूट्रल स्पेस वेयर हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम शेपिंग सेल्फ अंडरस्टैंडिंग. हम लोग ऐसा न्यूट्रल स्पेस क्रिएट कर बैठेंगे जहां पे have no history and culture have no influence on our self understanding. कि भाई हिस्ट्री और कल्चर का सेल्फ अंडरस्टैंडिंग पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा. बट देन आप अगर देखें तो सोशल जो है वो हमारी साइक का एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है. तो अगर हम लोग डीकोलोनियल साइकोलॉजी को प्रैक्टिस करेंगे तो हम अपने बारे में और जान पाएंगे एंड उसको सोशल कॉन्टेक्स्ट में रखेंगे. ऐसा नहीं होगा कि सोशल कॉन्टेक्स्ट का हमारी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर कोई इंफ्लुएंस होगा ही नहीं, ठीक है. सो दिस इज टू एक्सट्रीम. सी द रिकवरी ऑफ सप्रेस्ड कल्चरल फ्रेमवर्क्स एंड एम्पावरमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स. एग्जैक्टली यही आपका आंसर है. अगर आप डीकोलोनियल साइकोलॉजी को प्रैक्टिस करोगे सो बेसिकली यू विल फील एम्पावर्ड एंड आपको ये समझ में आएगा कि जो सोसाइटी है वो काफी ज्यादा सब्जेक्टिव है, हायरार्किकल है. यही तो यहां पे उसने बोल रखा था, सब्जेक्टिविटी इज एम्बेडेड इन हिस्ट्री एंड हायरार्की. So that is why you will feel empowered. So C should be your answer. The replacement of collective memory with a universal model of psychological well-being. कि भाई collective memory जो है वो replace हो जाएगी with universal model of psychological well-being. Again, extreme option. The correct answer is option C. यहाँ पे play क्या था? Options को closely पढ़ के उन्हें interpret करना. Option C was clearly the winner and your answer. Next, question number 3. Which of the following has been assumed in the passage? Passage में क्या assume किया हुआ है? काफी close options है यहाँ पे. Exactly the kind of difficulty level of difficulty you face on CAT. So basically आपने इसको म्यूट करके आंसर जो है वो मार्क कर लिया होगा. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. देखो वो बोल रहे द वेज इन विच पीपल अंडरस्टैंड एंड कंस्ट्रक्ट देयर आइडेंटिटीज आर इनसेपरेबल फ्रॉम प्रिवेलिंग सिस्टम्स ऑफ डोमिनेंस एंड हायरार्की. जिस तरीके से लोग समझते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी आइडेंटिटीज को, दे आर इनसेपरेबल फ्रॉम प्रिवेलिंग सिस्टम्स ऑफ डोमिनेंस. तभी तो साइकोलॉजी, जब आप डीकोलोनियल साइकोलॉजी को आप प्रैक्टिस करते हो तो वो जो है वो आपको एम्पावर करता है. क्यों? क्योंकि आप किससे इन्फ्लुएंस जो आप इन्फ्लुएंस जो सोसाइटी से, जो आपको कलेक्टिवली आपके ऊपर इंपोज किया जा रहा है. तभी तो इट वाज अ टूल, रेसिस्ट टूल ऑफ वेस्टर्न थॉट. नो वन कैन डिनाई इट हैज बीन यूज्ड टू स्टिग्मेटाइज, इन्फैंटलाइज, कैटेगराइज, मैनिपुलेट. तो ये मैनिपुलेट क्यों होते थे? उसके पीछे का असम्पशन क्या है कि जिस तरीके से लोग अपने आप को समझते हैं
अपने आप को अपनी आइडेंटिटीज कंस्ट्रक्ट करते हैं, दे आर इनसेपरेबल फ्रॉम प्रिवेलिंग सिस्टम्स। क्योंकि अगर वो इन सेपरेबल होते हैं प्रिवेलिंग सिस्टम से तो वो इन्फ्लुएंस ही नहीं होते। तभी तो ऑथर ने सजेशन दिया डी कॉलोनियल साइकोलॉजी को प्रैक्टिस करना है। सो डी शुड बी योर आंसर। साइकोलॉजिकल थ्योरीज मेंटेन देयर इफेक्टिवनेस रिगार्डलेस ऑफ कल्चरल और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। नहीं, कल्चरल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। सो ए जो है वो गलत है। Pursuit of self knowledge is possible only when individuals detach from their social environment. Again, ये सोसाइटी को उसका पार्ट नहीं मान रहा, जबकि अकॉर्डिंग टू पैसेज सोसाइटी इंपॉर्टेंट पार्ट है। So ये भी गलत हो गया। एंड सी, हिस्टोरिकल ऑपरेशन में इन्फ्लुएंस एक्सटर्नल कंडीशंस बट लीव्स द इनर सेल्फ लार्जली अनटच्ड। वो इनर सेल्फ को भी इन्फ्लुएंस करता है, तभी तो डीकोलोनियल साइकोलॉजी को परस्यू करने की जरूरत है, सो दैट यू फील एम्पावर्ड। नहीं तो आपको डीकोलोनियल साइकोलॉजी को प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं थी। सो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट, द करेक्ट आंसर इज डेल्टा। अगेन, क्वेश्चन नंबर 4। एक बार आप इसको म्यूट कर लीजिए एंड इसके बाद हम लोग इसका आंसर डिस्कस करेंगे। सो आप प्ले करके एन आंसर फिर देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पैराडॉक्सेस हैज बीन हाइलाइटेड इन द पैसेज? दिस इज प्रीटी सिंपल। अगर आपको पता है कि पैराडॉक्स क्या होता है, आप फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते ही अपना आंसर मार्क कर सकते थे। The same discipline that once served as a mechanism of colonial control has also become means through which colonized people articulate resistance and reclaim agency. क्योंकि यहाँ पे आपको दे रखा है it was a tool of Western thought, but the study of the mind यानी कि psychology has simultaneously been a part of story of anti-colonial colonialism and liberation. ठीक है? So the same discipline that once served as mechanism of colonial control also became means through which colonized people articulated resistance and reclaimed agency. यही इसका पैराडॉक्स है। बाकी कहीं पर भी आपको ये दो चीजें कंजंक्शन में नहीं दिखाई दे रही। बी बोल रहा है attempt to universalize psychological principles across societies has resulted in greater respect, बट ये पैराडॉक्सिकल कहाँ है? ठीक है। The rise of psychoanalysis and post-colonial contexts undermine collective healing। कि भाई साइको एनालिसिस पोस्ट कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट में अगर बढ़ा तो उससे कलेक्टिव हीलिंग जो है वो अंडरमाइन हो गई। बट ऐसा अपन को पैसेज में नहीं बता रखा कि कलेक्टिव हीलिंग जो है वो अंडरमाइन हो गई। तो ऐसे हम लोग दो ऑपोजिट चीजों को ऐड करके पैराडॉक्स तो बना सकते हैं, लेकिन वो पैराडॉक्स पैसेज से भी तो आना चाहिए। तो this is not given in the passage. And D, philosophical call to self knowledge has always required detachment from context, yet modern psychology insists on historical embeddedness. Philosophical call to self knowledge has always required detachment. अभी तो philosophical call पे आ गया। Philosophy has got nothing to do with the argument. The argument is entirely based on psychology. ठीक है? That is why D is incorrect. I hope आपको ये समझ में आया। We now move to next passage. So this was a typical CAT passage जहां पे दो questions ऐसे थे जो थोड़े से हाई लेवल के थे। एक क्वेश्चन ऐसा था जो आप कह सकते हो कि इजी से मॉडरेट था। एंड लास्ट क्वेश्चन, अगर आपको पैराडॉक्स पता है क्या होता है, you could have easily marked the answer for this one as well. So this was a typical CAT passage. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पैसेज नंबर 2, डीकपलिंग इज द टॉपिक। सो आप इसको एक बार रीड करें एंड बिगिन करते हैं हमारा फिर डिस्कशन। सो आप पॉज करके इसको देख सकते हैं। मैं यहां से अपना आर्ग्यूमेंट जो है बिगिन करता हूं। वो बोल रहा है, एट द हार्ट ऑफ द करंट एनवायरमेंटल डिबेट्स इज अ क्रूशियल क्वेश्चन, इज इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल विदाउट एनवायरमेंटल deconstruction, without environmental destruction? So I think यहाँ से टॉपिक जो है वो बड़ा क्लियर हो गया होगा कि हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, कि क्या ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल है विदाउट एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। Climate change, biodiversity degradation, overexploitation, and many forms of pollution are evident problems. इन problems के ऊपर तो हर कोई agree करता है, scientific consensus भी है। Most people no longer deny, सब लोग agree भी करते हैं। लेकिन problem क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा। मोस्ट पीपल नो लॉन्गर डिनाई द मैक्सिम that endless material growth is impossible on a limited planet. Only those dreaming about asteroid mining fueled by fusion and terraforming, often fringe billionaires, reject this tenet.
केवल जो फ्रिंज बिलियनर्स हैं, जो एक्सेंट्रिक लोग हैं, वो इसको रिजेक्ट करते हैं और वो बोलते हैं नहीं, ग्रोथ पॉसिबल है। अदरवाइज पीपल बिलीव कि हाँ, फर्दर ग्रोथ, मटेरियल ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। Recognition of environmental problems is widespread, even if not met with necessary action. हमने action नहीं लिया तो क्या हुआ? Recognition तो है. Alongside this, it's widely accepted belief that economic growth is necessary. And साथ साथ हम ये भी मानते हैं कि economic growth जो है वो necessary है. Problems है, economic growth भी necessary है. तो हम इन दोनों चीजों के ऊपर agree करते हैं. Not just to aid the poor, but to sustain social momentum. In wealthy countries, this belief is invoked to justify growth. Without it, employment rises, pensions go unpaid, debts accumulate. ग्रोथ नहीं हुई तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो होने लग जाएंगी। आगे वो बोल रहा है, it's widely acknowledged that growth has caused, guys, just one moment. So ये बोल रहा है, it is widely acknowledged that growth has caused environmental problems. Severity of the crisis is debated. कि भाई ग्रोथ की वजह से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो है वो हुई है, कितनी सिवियर है उसको अभी भी डिबेट किया जा रहा है। इन रीसेंट इयर्स कंसेप्ट ऑफ डीकपलिंग हैज इमर्ज्ड, एंड इसीलिए इन दिनों डीकपलिंग जो है ये कंसेप्ट हमारे सामने आया। डीकपलिंग का मतलब बेसिकली हम लोग ग्रोथ को ग्रीन ग्रोथ में कन्वर्ट कर सके, राइट। आगे वो बोल रहा है वो बोल रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ, इट इज आर्ग्यूड, कैन बी कपल फ्रॉम मटेरियल ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। जरूरी नहीं है कि एनवायरमेंटल ग्रोथ जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इट लीड्स इनटू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। सो डीकपलिंग को वो यही बोल रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो एंड वो ग्रीन ग्रोथ भी हो, ठीक है। ग्रोथ कैन दस बी ग्रीन। Just as dark satanic mills were cleaned and ozone depletion addressed all environmental problems, some argue can be resolved with uh, with growth. The link between economic growth and environmental harm can be broken. इसी को ही decoupling कहा गया है। आगे उसने बोला, but not everyone agrees, and decoupling is now a center point of public debate. In 2023, Paul Krugman's column in New York Times asserted that growth can be green, directly critiquing those who claim that growth and environmental protection are incompatible. He framed environmentalists and growth skeptics as inadvertently aiding those who oppose environmental policies. सो मिस्टर क्रगमैन ने न्यूयॉर्क टाइम्स में ये बोला कि ग्रोथ जो है वो ग्रीन हो सकती है, एंड जो लोग इसको मानने से मना करते हैं वो लोग उन लोगों को कहीं ना कहीं पे हेल्प कर रहे हैं जो एनवायरमेंटल पॉलिसीज को लेके वैसे भी अपोज करते हैं। आगे वो बोला, Krugman drew on data from our world and data whose contributors have echoed similar views. Max Roser in 2021 wrote similar piece and वो भी यही बोल रहा है कि future holds either ongoing poverty, environmental destruction or both, ठीक है। So basically वो भी इसको सपोर्ट कर रहा है एंड वो बोल रहा है कि ग्रोथ कैन बी ग्रीन। इसी के बेसिस पे फर्स्ट क्वेश्चन, इसी के बेसिस पे फर्स्ट क्वेश्चन, सो आप इसको पॉज करके एंड सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आगे इसको सॉल्व करवा रहा हूँ। सो यहाँ पे बोल रहा है, व्हाट रोल डज रेफरेंस टू एस्टेरॉयड माइनिंग टेराफॉर्मिंग फ्रिंज बिलियनर्स प्ले इन द पैसेज। सो बेसिकली यहाँ पे उन फ्रिंज बिलियनर्स की बात की हुई थी। ये जो स्टेटमेंट है ये क्या रोल प्ले कर रहा है? Basically, the correct answer is option A. It offers a humorous dismissal of extreme techno-optimism as credible environmental solution. So basically, इनको वो dismiss कर रहा है and fringe billionaires, asteroid mining fueled by fusion and terraforming. So author ने ये बड़े बड़े terms जो है वो sarcasm के लिए use किया है, तो इसलिए humorous dismissal। B बोल रहा है, introduces a viable but underexplored path, but then author जो है
इसको कहीं पर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इसको रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। सरकाजम शो हो रहा है। सो इट इंट्रोड्यूसेस अ वायबल अंडर एक्सप्लोर्ड पाथ टू रिजॉल्विंग, यानी कि ये तो ऑथर का एक्सेप्टेंस शो कर रहा है, जबकि ऑथर ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये तो वैसे ही गलत है। एंड इट प्रोवाइड्स अ मेटाफर फॉर अनप्रिडिक्टेबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशंस। ये प्रेजेंट नहीं किया है उसको, यहाँ पे ऑथर ने रिजेक्ट किया है, सो इट प्रोवाइड्स अ मेटाफर, वो भी नहीं होगा। एंड डी, इट हाईलाइट्स हाउ billionaires rather than governments are now leading the conversation. This is again out of scope. So the correct answer for this one is option A. Next, which of the following is best follow-up question? Now, this is one type of question जो पिछले कुछ सालों में हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन ऐसे questions भी आपके पास आ सकते हैं। How are we supposed to address such questions? ऐसे questions को हम लोग address करें तो करें कैसे? देखिए, दो तीन चीजें हो सकती है। हो सकता है कि, और आप इसको नोट करिएगा, हो सकता है कि ऑप्शन ऐसा है जो यहां पे कहीं पे आर्ग्यूमेंट को डिस्कस कर रहा हो। अगर, और ये पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट फॉलो अप क्वेश्चन? फॉलो अप क्वेश्चन कहाँ आएगा? लास्ट में आएगा, राइट। और इफ द क्वेश्चन टॉक्स अबाउट समथिंग जो पैसेज में यहां पे डिस्कस हुआ है, तो वो फॉलो अप क्वेश्चन तो नहीं हो सकता। व्हाई? बिकॉज इट हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड वंस। अनदर रीजन, वो लिंक भी तो नहीं कर रहा है इसके साथ, तो आपको कुछ ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो नीचे, सो आप जब भी ऐसे ऑप्शन को ढूंढेंगे, तो एग्जैक्टली यहां से पढ़ना स्टार्ट नहीं करेंगे। पढ़िए, तीन चार लाइन ऊपर जाइए, वहां से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, सो दैट यू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ द आइडिया, आइडिया का फ्लो आपको समझ में आए। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, तो इट टॉक्स अबाउट Krugman drew on data from our world in data, uh, whose contributors have echoed similar views. Max Rosier in 2021 piece argued that doubting decoupling implies disregard for poverty. If growth and environmental harm cannot be decoupled, he suggested the future holds either ongoing poverty or environmental destruction or both. ठीक है, तो इसीलिए जो मैक्स रोजियर है वो भी यही मान रहा है। तो यहाँ पे what reliable methods can be used to determine whether large scale decoupling is actually occurring rather than being a statistical illusion? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ इसी तरीके से बात हो रहा है। So what reliable methods can be used to determine whether large scale decoupling is actually occurring rather than being a statistical illusion? B बोल रहा है, is the persistence of unemployment and pension crisis primary reason governments in wealthy nations continue to pursue growth? लेकिन ये पेंशन अनएम्प्लॉयमेंट एग्जाम्पल की तरह यूज हुए थे, और वो भी कहाँ पे? यहाँ पे। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ऐसी चीज के बारे में बात हो रही है जो पैसेज में ऊपर डिस्कस हो रहा है, वो फॉलो अप क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता, फॉर टू रीजंस। वन, कनेक्शन नहीं बैठ रहा। सेकंड, इट हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस इन द आर्ग्यूमेंट। थर्ड, ऐसा ऑप्शन गलत ऑप्शन होता है जिसके बारे में पैसेज में बात ही नहीं हुई हो, ठीक है। Should those who oppose the idea of green growth be regarded as acting against the interests of the poor? So basically A and C यहाँ पे काफी क्लोज लग रहे हैं, लेकिन इसने पूरा आइडिया ही शिफ्ट कर दिया। अब ये ऐसे लोगों के ऊपर आ गया जो लोग ग्रीन ग्रोथ को अपोज कर रहे हैं, लेकिन वो लोग ग्रीन ग्रोथ को अपोज नहीं कर रहे, वो बोल रहे हैं कि डीकपलिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। सो दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। दैट इज व्हाई सी कैन नॉट बी योर आंसर। एंड ऑप्शन डी, to what extent does advocacy of futurists like Elon Musk meaningfully influence mainstream debates on environmental policy? Again, फ्यूचरिस्ट का कितना इन्फ्लुएंस होता है, उसके बारे में यहाँ पे बात नहीं हुई है, सो इट इज बियॉन्ड द स्कोप। द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज ऑप्शन ए, ठीक है। ये क्यों गलत था? क्योंकि इसका आइडिया ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। सो ए इज योर आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस point out a serious concern possible in author's assertion? अब ये serious concern, ये क्या पूछ रहा है? ये एक फ्लॉ पूछ रहा है, ठीक है। फ्लॉ क्या होता है? एक अनवॉरेंटेड assumption होता है, राइट। सो आपको इसमें से assumption ढूंढना है। पॉज इट, अपने आप सॉल्व करो, एंड फिर इसको आगे बढ़ाओ। हर एक ऑप्शन में आपको कुछ ना कुछ गलती ढूंढनी है, जहां पे गलती नहीं मिले वही आपका आंसर होगा। देखो, ए बोल रहा है, his reliance on historical precedents such as cleaning on industrial mills and resolution of ozone depletion may overstate unprecedented challenge of today's environmental crisis. अब
अगर आप इस ऑप्शन को ढंग से इंटरप्रेट नहीं कर पाए तो ये गलती है। ये क्या बोल रहा है कि भाई उसने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि कुछ ऐसी सैटनिक मिल्स को क्लीन किया गया, ओजोन डिप्लेशन को एड्रेस किया गया, तो हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ को भी एनवायरनमेंट के साथ जोड़ के एंड देख सकते हैं, राइट। सो बेसिकली उसने ये एग्जाम्पल क्यों यूज किया, ये प्रूव करने के लिए कि एनवायरनमेंट एंड ग्रोथ दोनों साथ में चल सकते हैं। लेकिन ये तो बोल रहा है कि जो ये एग्जाम्पल है क्लीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल मिल्स, जो सैटनिक मिल्स वहां पे दे रखी है, रेजोल्यूशन ऑफ ओजोन डिप्लेशन, ये आज के चैलेंज को ओवरस्टेट करते हैं, जबकि ओवरस्टेट नहीं, प्रॉपरली रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो फ्लॉ हुआ ही नहीं ना, क्योंकि ऐसा तो कुछ उसने बोला ही नहीं, तो ये गलत है। ठीक है। By framing techno-utopian visions like asteroid mining as fringe, he risks dismissing potential long-term solutions. लेकिन ये जो टेक्नो यूटोपियन विजन्स है, एस्टेरॉयड माइनिंग, ये तो सरकास्टिकली उसने यहाँ पे रखा है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है जहाँ पे वो इसको कंसिडर कर रहा हो, तो ये भी फ्लॉ है ही नहीं। Again, his emphasis on scientific consensus around ecological limits may oversimplify legitimate disagreements about the pace and severity of environmental degradation. Emphasis on scientific consensus and around ecological limits may oversimplify legitimate disagreements about the pace and severity of environmental degradation. Just because वो scientific consensus दिखा रहा है, इट डज नॉट मीन कि वो जो आर्ग्यूमेंट है वो ओवर सिंप्लीफाई हो गया। ये हमारे हमको ऐसा लग रहा है कि एक मिस्टेक है, बट मिस्टेक नहीं है। सारे सारे ऑप्शंस जो है वो इसी तरीके से फ्रेम किए हुए होते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे, प्रॉब्लम है डी में। हिज बिलीव दैट ग्रोथ कैन बी रिकनसाइल्ड विद इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन, कि भाई हम लोग इकोलॉजी एनवायरनमेंट को एंड ग्रोथ को दोनों को साथ में चला सकते हैं। इस पॉसिबिलिटी से ग्रोथ के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड ग्रोथ जो है वो किसकी होगी, क्योंकि जो ऑलरेडी प्रिविलेज लोग हैं वो ही ग्रोथ कर पाएंगे। पॉवर्टी तो आपने एड्रेस की ही नहीं, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे जो मिस्टेक है इट्स विद ऑप्शन डी, क्योंकि वो बोल रहा है कि ग्रोथ एंड एनवायरनमेंट के बीच में देखते रहोगे तो प्रिविलेज लोग ही बेनिफिट करेंगे एंड पॉवर्टी तो वैसी की वैसी ही रह जाएगी। तो ये एक मिस्टेक है, ये इसके ऊपर क्वेश्चन रेज कर रहा है, तभी आर्ग्यूमेंट फ्लॉ है। देखो क्वेश्चन आप कब रेज कर सकते हो आर्ग्यूमेंट के ऊपर, जब उसमें जो कुछ बात बोली हुई है वो बात गलत बोली हुई है। ए बी एंड सी तीनों में ऐसी बातें बोली हुई है जो पैसेज का पार्ट ही नहीं है, दैट इज वाई वो कंसर्न्स भी नहीं है। तो कंसर्न क्या है, डेल्टा। आई होप इट्स अंडरस्टूड। एंड इसके बाद वन लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्प्लाइड बाय द पैसेज। पैसेज में क्या इम्प्लाई नहीं किया हुआ। Some proponents of growth view environmentalism that questions growth as indirectly harmful to sustainability efforts. कुछ proponents ऐसे हैं जो जो growth के proponents हैं, वो environmentalism को question करते हैं। सही बात है, that question the growth as indirectly harmful, क्योंकि environmentalists क्या बोलते हैं, growth की वजह से ये environmental को harm पहुंच रहा है, तो कुछ proponents of growth इसको question करते हैं। तो ये बात तो अकॉर्डिंग टू पैसेज बिल्कुल सही है, इंप्लाइड है। एनवायरमेंटल पॉलिसी डिबेट्स इंक्रीजिंगली फीचर इकोनॉमिक डेटा एंड ग्रोथ रिलेटेड जस्टिफिकेशंस। सही बात है, पैसेज में आपको ये क्लियरली दे रखा है। हमने कहां कहां से डेटा उठाया, Krugman drew on data from our world in data। ठीक है, सो यहां से environmental policy debates increasingly feature economic data and growth related justifications। Belief in green growth often stems from a concern for poverty alleviation alongside sustainability। तो सही बात है ना, ग्रीन ग्रोथ की हम लोग बात करते हैं, वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट को ध्यान नहीं रखेंगे एंड केवल ग्रोथ को देखेंगे तो या तो पॉवर्टी रह जाएगी या ग्रोथ रह जाएगी या फिर दोनों ही रह जाएंगे। सो कहीं ना कहीं पे बिलीफ इन ग्रीन ग्रोथ ऑफन stems फ्रॉम कंसर्न फॉर पॉवर्टी एलिविएशन अलोंगसाइड सस्टेनेबिलिटी। ये चीजें यहाँ पे दे तो रखी है कि ग्रोथ अगर नहीं देखेंगे तो ये प्रॉब्लम्स रह जाएगी, एंड एनवायरनमेंट को नहीं देखेंगे तो पॉवर्टी रह जाएगी। तो बेसिकली ऑथर इसके साथ भी एग्री कर रहा है। व्हाई नॉट डी, ऑथर इसके साथ एग्री नहीं करता, इसीलिए ये आपका आंसर है।
सो वो बोल रहा है मोस्ट मेन स्ट्रीम इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट इकोलॉजिकल क्राइसिस इज एग्जैजरेटेड. नो, इनफैक्ट पैसेज में ये दे रखा है कि इकोलॉजिकल क्राइसिस को हर कोई एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये है, बट उसका सोल्यूशन क्या है? डीकपलिंग उसका सोल्यूशन है. ठीक है. सो दे डोंट बिलीव दैट दीज प्रॉब्लम्स आर एग्जैजरेटेड. आई होप आपको ये समझ में आया. एंड ये सेशन जो है वो आपको अच्छा लगा. डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स. मैं आपके साथ मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में. एंड इसके बाद हमारा एक यू नो एक ऐसा सेशन भी आ रहा है जहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं इन द मैराथन फॉर्म. एंड वो सैटरडे को आपके लिए प्लान है. सो प्लीज आप उस सेशन के लिए भी जरूर आइएगा. आज मेरी तरफ से इतना ही. डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बॉक्स कैसा लगा. I thank you all for your time today. You all have a wonderful day.